Hello viewers, I am Deepthi. On special request of some of my viewers, today I am going to make a video discussing important points to be focused chapter wise from ICSE Class 10 Chemistry. I am going to make this video in two parts. Initially, I am going to give general tips and then we will discuss important points chapter wise. To begin with, I would request you to refer to the syllabus given by Council while going through each topic because a few topics are reduced from the syllabus for this year 2022-23 examination. Practice writing balanced chemical equations as much as you can so that you do not make balancing error. केमिस्ट्री में बैलेंस्ड इक्वेशन के ही आपको मार्क्स मिलेंगे, तो बैलेंसिंग हमें हर इक्वेशन को करके ही देना है. Learn thoroughly the colors, solubility of precipitates using reagents such as sodium hydroxide and ammonium hydroxide, as these are frequently asked questions in board examinations. While answering observation-based questions, it is important that you mention color of the precipitate, either color of the precipitate or residue or gas or solubility, and avoid writing just the name of the product or products. सिर्फ नाम लिखने से नंबर नहीं मिलेंगे. ऑब्जर्वेशन मीन्स आपने जब ये रिएक्शन परफॉर्म किया, आपने क्या ऑब्जर्व किया, क्या निकल रहा था, कौन सी गैस थी, उसकी सॉल्युबिलिटी कैसी थी, ये सब चीजें हमने अपनी ऑब्जर्वेशन में देनी है, उसी के मार्क्स हैं. Practice all types of questions from previous year's question papers, mock test, self-evaluation test, specimen papers given by board, etc. इन सब की प्रैक्टिस आप जितनी करेंगे उतने आपके सामने जो क्वेश्चंस आएंगे, जो रिपीटेड क्वेश्चंस होंगे, उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा. First 15 minutes of reading time should be utilized wisely by reading section B first and then choose your best questions by watching them carefully. The maximum marker part of the question. सबसे ज्यादा मार्क्स वाला पार्ट जिस क्वेश्चन का आपको आता है सेक्शन बी में से, आप उसको पहले चूज करेंगे ताकि वो आपके 15 मिनट्स उस चूजिंग में यूज हो जाएं जुडिशियसली. This should be followed by reading the section A, which is compulsory. Section A को तो आपने सारा ही अटेम्प्ट करना है, तो उसे आप साथ साथ में डिस्कस करके सॉल्व करते जा सकते हैं. Give a lot of practice to multiple choice questions. यही वो क्वेश्चंस हैं जहां आप सबसे ज्यादा एरर करेंगे, क्योंकि इनमें एग्जामिनर ट्रिकी क्वेश्चन डालने की कोशिश करेंगे. तो जितनी ज्यादा इनकी प्रैक्टिस आप करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा. हर क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने से एमसीक्यू फॉर्म में गुजर जाएगा, तो आपको वहां ज्यादा टाइम उन पे नहीं लगाना पड़ेगा. Avoid overwriting for the chosen option for MCQs and mark the correct option only when you are sure. ये नहीं कि गलत ऑप्शन चूज कर दिया उसके बाद सोच रहे हैं उसके बारे में. Draw the structural formula of organic compounds with all the bonds properly visible. जब भी आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाएंगे, 15 मार्क्स का ये चैप्टर है, ड्रॉ स्ट्रक्चर्स मिनिमम 5 मार्क्स का आता है या स्ट्रक्चर रिलेटेड क्वेश्चन 5 मार्क्स का आता है, तो उसमें जब आपको ड्रॉ करना है तो बॉन्ड्स आपके क्लियरली विजिबल होने चाहिए. ये नहीं कि ट्रिपल बॉन्ड है, आपका डबल बॉन्ड ही दिखाई दे रहा है, तीसरी लाइन दिखाई नहीं दे रही है, तो ध्यान से ड्रॉ करना है. ड्रॉ फंक्शनल ग्रुप इन एक्सपेंडेड फॉर्म एंड नॉट इन द कंडेंस्ड फॉर्म. हमेशा फंक्शनल ग्रुप को खुला रहने दें. OH ग्रुप दिखाई दे, COOH दिखाई दे, उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लेकर आए, कंडेंस्ड फॉर्म में मत लिखें. डबल बॉन्ड O के साथ दिखाई देना चाहिए. Distinguish between a pair of compounds using a simple reagent stating that one gives a characteristic reaction while the other does not. जब भी आप कंपाउंड्स के बीच में डिस्टिंग्विश दे रहे हैं पॉइंट, तो आपने जो रिएजेंट यूज किया है आप बताएं कि एक में ये चीज हो रही है, दूसरे में नहीं हो रही है, ताकि एग्जामिनर को पॉइंट क्लियर हो जाए. डू नॉट मिस द की टर्म्स वाइल राइटिंग डेफिनेशन, क्योंकि डेफिनेशन में प्रॉपर डेफिनेशन का ही आपको एक फुल मार्क मिलेगा, no half marks. Let us start with chapter-wise important points you should keep in your mind while preparing for your examinations. Starting with chapter 1, which is periodic table, periodic properties and variation of properties. The most common errors committed by students is about the vertical columns and horizontal rows.
कॉलम्स के बारे में आपको पता रहेगा, वर्टिकल कॉलम कितने हैं हमारे पास, उस हिसाब से हम पता कर पाएंगे कि हमारे पास कितने ग्रुप्स आ रहे हैं। हॉरिजॉन्टल रोज कितनी है, यानी कितने पीरियड्स आ रहे हैं, 7 पीरियड्स आ रहे हैं, 18 ग्रुप्स आ रहे हैं। नहीं तो पीरियोडिक टेबल की सारा आपने जो जितना भी याद किया वो सब गलत हो जाएगा अगर आप रो को ही डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे कॉलम से। कॉलम वर्टिकल है, घर के पिलर वर्टिकल होते हैं, कॉलम ये हैं, और हॉरिजॉन्टल रोज इस तरह से है, इनको गलत नहीं करना। Sometimes while writing the group number in Roman numeral, students miss to write the letter A. So instead of 6A, they write just 6. लेकिन अगर उसने पीरियड ही पूछा है आपसे तो आपको आगे A लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप सबको पता है बीच के एलिमेंट्स तो हम अभी नहीं पढ़ रहे हैं। 3 definitions of electron affinity, ionization potential and electronegativity. They are very important from first chapter. Do learn them along with their basic concepts. जैसे कि energy is required, it is ionization energy, and when energy is released, it is electron affinity. तो released और required यहाँ पर आपका कीवर्ड है, इसको गलत नहीं करना। For variation of periodic properties, you can learn a word M-A-Y-N-E. M-A and then V-I-N-E-E. M represents metallic character. तो मेटेलिक करेक्टर जब हम नीचे जा रहे हैं, यानी एक ही ग्रुप में जब हम नीचे जा रहे हैं तो मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज हो रहा है। आपको पता है सोडियम है, पोटेशियम है, तो पोटेशियम इज मोर मेटेलिक देन सोडियम, तो मेटेलिक करेक्टर नीचे जाने पे इंक्रीज हो रहा है। ऐसे ही एटॉमिक साइज भी हमारा नीचे जाने पे इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि हमारी एक एक शेल बढ़ती जा रही है, के एल एम एन, ये बढ़ता जा रहा है, नीचे जा रहे हैं, एक एक बढ़ेगा, यानी एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है जब हम एक ही ग्रुप में नीचे जा रहे हैं। और बाकी सारी ये कैरेक्टरिस्टिक नीचे जाने पे डिक्रीज हो रही हैं। ये दोनों नीचे जाने पे इंक्रीज हो रही हैं एक ग्रुप में, और ये नीचे जाने पे डिक्रीज हो रही हैं। और वाइस वर्सा जब हम पीरियड में जाएंगे तो जो नीचे जाने पे इंक्रीज हो रहा है वो उस तरफ जाने पे, पीरियड में उस तरफ जाने पे, लेफ्ट टू राइट पे वो डिक्रीज होगा, और ये जो है ये उस तरफ जाने पे हमारी इंक्रीज होंगी। और इसमें V क्या है, वैलेंसी। वैलेंसी आप सबको पता है 1 2 3 4 तक जाती है। हाँ, 4 के बाद हम उसे 3 2 1 ले लेते हैं, क्योंकि हम 8 माइनस करना स्टार्ट कर देते हैं। और आयनाइजेशन पोटेंशियल सेम यही रहेगा, नीचे जाने पे ग्रुप में डिक्रीज होगा। ऐसे ही नॉन मेटेलिक करेक्टर, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सब हमने सिर्फ इसके हिसाब से याद करना है। हमें ये दो लर्न करने हैं और बाकी सबका इसका अपोजिट कर देना है, तो आप इजीली फर्स्ट चैप्टर की पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में गलती नहीं करेंगे। Trends in chemical reactivity, you need to understand that in third period, sodium is the most reactive metal, silicon is the least reactive metalloid and chlorine is the most reactive non-metal. तो हमें मेटेलिक करेक्टर के लिए थोड़ा सा अलग भी जाना पड़ेगा, हर जगह हमारा यही M-A-Y-N नहीं काम करेगा। ऑल्सो ग्रेडेशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है ऑफ मेटल्स का, तो मेटल्स का डिक्रीज होगा ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप, एंड इन नॉन मेटल्स इंक्रीज ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप। दिस शुड बी क्लियर इन योर माइंड टू अवॉइड मेकिंग मिस्टेक्स। तो आपको ये सब चीजें याद करनी पड़ेंगी। कुछ पॉइंट्स हम इस वर्ड की हेल्प से याद कर सकते हैं, बाकी हमें समझने पड़ेंगे। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, मेटेलिक करेक्टर, इनके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। Another important point I would like to mention here is that if the element is given as, suppose X, 11 and 23, this is the element given. We know that atomic number is 11 and mass number is 23. We know the name of this element. Then answer should be X. चाहे हमें पता है कि ये सोडियम है, X नहीं है. Even if we know that it is sodium, but if it is asked about its bonding with other elements, तो हमें वहां पर आंसर शुड बी इन X and Y only. बॉन्ड पूछा है उसने, X और Y के बीच में पूछा है, एक एलिमेंट सोडियम है, मे बी दूसरा Cl होगा, बट उसने हमें XY में पूछा है, पहले हमें XY में देना है, फिर वो पूछेगा अगर कौन सा एलिमेंट ये रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर हम सोडियम का नाम देंगे। आप पहले सोडियम नहीं लिखेंगे, X और Y में क्वेश्चन है, P या Q में क्वेश्चन है, तो उसी के हिसाब से उनके आंसर्स आपने देने हैं, उसको वही एलिमेंट रहने देना है जो सिंबल उन्होंने यूज किया है, अल्फाबेट जो यूज किया गया है। Reasons like cation is always smaller than the parent atom, anion is larger than the parent atom, etc. should be crystal clear. Now coming to second chapter, which is chemical bonding. You will have about 16 marks question from these first two chapters in your board examination, near about 16 marks.
but the question can be MCQ, 2 marker question in section A or even question in section B. तो क्वेश्चन कहीं पे भी वेरिएशन ले सकता है. Definitions of ionic bond, covalent bond, coordinate bond, lone pair of electrons, polar, non-polar compounds, dipole molecule are very important. Please do not miss any of the key terms while writing these definition. मैंने आपको बताया डेफिनेशंस में एक भी कीवर्ड मिस होने का मतलब आपकी डेफिनेशन का पूरा मीनिंग निकलकर नहीं आ पाएगा. Conditions for the formation of these three type of bond should be understood clearly. किसमें क्या चीज कम होनी चाहिए, एक लोन पेयर एक्स्ट्रा होना चाहिए, एक लोन पेयर की डेफिशिएंसी होनी चाहिए, ये सारी कंडीशंस हमें लर्न होनी चाहिए. Next, electron dot structure of NaCl, calcium oxide, magnesium chloride, hydrogen, oxygen, nitrogen, chlorine, HCl, water, ammonia, methane, carbon tetrachloride, ammonium, हाइड्रोनियम एंड हाइड्रोक्सिल. इन तीनों में से तो एक पक्का आता है, हाइड्रोनियम, अमोनियम एंड हाइड्रोक्सिल शुड बी प्रैक्टिस प्रॉपर्ली. इन डायग्राम्स को आप डॉट स्ट्रक्चर में बना के देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे. सिर्फ देखेंगे नहीं, बुक में देख लिया आ गया, बहुत सिंपल है, नहीं, हाथ से प्रैक्टिस करें ताकि आपको याद रहे कि हम क्या क्या कर रहे हैं. और सिर्फ आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स आपने दिखाने हैं. रिप्रेजेंट two different elements with two different symbols and do not use only dots or only crosses and count them also. ऐसा नहीं है कि मैंने मान लीजिए MgCl2 का स्ट्रक्चर बनाया तो Mg के लिए डॉट लिया तो मैं क्लोरीन के लिए भी डॉट ले रही हूँ, गलत बात है. क्लोरीन के लिए हम क्रॉस ले लेंगे, एक एलिमेंट के लिए डॉट लिया, एक के लिए क्रॉस ले लीजिए और फिर उनको करें. और क्रॉस को काउंट जरूर करें, ये नहीं कि क्लोरीन के आगे एक क्रॉस लगाया क्योंकि हमने स्ट्रक्चर में तो यूज तो एक ही करना है, एक का पेयर बनाना है, बट 7 है तो हमें बाकी 6 चाहे वो यूज नहीं हो रहे बट हमें वो बाकी 6 भी रिप्रेजेंट करने हैं, चाहे आप डॉट से शो करें चाहे क्रॉस से शो करें. प्लीज डू नॉट मिस द पॉजिटिव चार्ज आउटसाइड अमोनियम और हाइड्रोनियम आयन. आपको पता है कि अमोनियम जब हमने बनाया NH4 तो उसके स्ट्रक्चर के बाहर आपने जो प्लस का साइन लगाना है वो यहाँ पर जरूर होना चाहिए. अगर हाइड्रोक्साइड है, OH है, तो इसके ऊपर माइनस जरूर होना चाहिए. हाइड्रोनियम है, H3O है, तो उसके ऊपर प्लस जरूर होना चाहिए. तो ये बाहर के साइंस आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं. डू नॉट मिस देम. You should learn the difference between ionic and covalent compounds. क्या डिफरेंसेस हैं, बॉइलिंग पॉइंट में क्या है, मेल्टिंग पॉइंट में क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है, किस में क्यों चीज हो रही है, इसका रीजन क्या है, ये सब. नेक्स्ट डिफरेंस इज पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड्स और यू कैन से मॉलिक्यूल्स. नेक्स्ट इज फ्लोराइड आयन एंड नियॉन एटम. तो हमें यहाँ स्टूडेंट को ये चेक किया जाता है कि आयन और एटम में फर्क पता है कि नहीं, तो इस तरह के डिफरेंस भी आते हैं. नेक्स्ट इज कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड NaCl विद रिगार्ड टू सॉल्युबिलिटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. तो इस तरह के डिफरेंसेस के लिए आपको प्रिपेयर रहना है, जितने भी इस चैप्टर में से कवर हो सकते हैं. Next is examples of single, double and triple covalent bonds. Like carbon dioxide has 2 double bonds of carbon and oxygen. Ethylene has triple bond between carbon and carbon atom. These should be practiced well. डायग्राम में आपका सिंगल, डबल, ट्रिपल बॉन्ड सब काउंट होंगे तो आपको पता होना चाहिए. Next is relation between electronegativity and the type of bond formed between two elements. Like if the electronegativity is same, then non-polar bond is formed. If slightly different electronegativity, then polar bond is formed. And if the electronegativity difference is more, then ionic bond is formed. तो हमें पता होना चाहिए कि अगर दो एलिमेंट्स हैं उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस काफी ज्यादा आ रहा है तो वो आयोनिक बॉन्ड होगा. अगर स्लाइटली डिफरेंट है तो वो पोलर बॉन्ड होगा. जैसे HCl में थोड़ा सा डिफरेंस है तो पोलर बॉन्ड होगा. और अगर है ही नहीं डिफरेंस, सेम ही है HH या ClCl, तो कोई डिफरेंस ही नहीं है, तो वहां पर जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा. Reason type questions from this chapter can be like HCl can be termed as covalent compound. कैसे है अभी बताया. Electrovalent compounds have high melting and boiling point. Why? इसी तरह से और भी काफी सारे रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस हैं. एक्सप्लेन प्रॉपरली विद कीवर्ड्स लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. अगर आप मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे, किसका हाई है किसका लो है, तो उसके पीछे प्रॉपर रीजन का मेन कीवर्ड क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. वो वर्ड आपने जरूर रीजन में देना है अगर रीजन पूछा गया है तो. कमिंग टू चैप्टर 3 विच इज एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स.
First of all, I would like to tell you the importance of last यानी कि 13th chapter which is practical work and it is clubbed with this chapter also. तो इनके क्वेश्चन मिक्स होके आते हैं, वैसे तो किसी भी और चैप्टर के साथ मिक्स होते हैं, बट 3rd और 13th चैप्टर का कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है. Lab work is very important and questions associated with color change, with indicators, pH value of solutions, observation-based questions and identification of compounds are frequently asked ones, like light green amorphous powder turns to black. लाइट ग्रीन कलर का amorphous powder है जो कि black में turn हो गया on strong heating and gives off colorless, odorless gas that extinguishes a burning splinter and turns lime water milky. जैसे ये टर्म आया आपको पता चल गया होगा कि लाइम वाटर को मिल्की दो ही गैसेस करती हैं, या तो CO2 है या SO2 है. Here you should know that the gas evolved is CO2 जो हमारा केस है जिसमें ग्रीन कलर का पाउडर ब्लैक हो रहा है और रेजिड्यू जो है वो कॉपर ऑक्साइड है एंड देयरफॉर जो लाइट ग्रीन पाउडर हमने यूज किया था वो कॉपर कार्बोनेट है. इस तरह के क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर के साथ और 13 चैप्टर के मिक्स करने के बाद ही समझ आएंगे. तो आप दोनों चैप्टर्स को थोड़ा साइमल्टेनियसली देखने की कोशिश करिए. 13 चैप्टर में तो सारे बुक का प्रैक्टिकल वर्क है, उसमें सबके मिक्स हैं, लेकिन क्योंकि इसके साथ क्लबिंग क्वेश्चन की फ्रीक्वेंटली होती है. Students must understand all these type of questions are clearly given in chapter 13 and relate these with the practical work you had done in your chemistry lab. तो जब आपने वो चीज पढ़ी भी होगी, करी भी होगी, देखी भी होगी, तब आप उसमें गलती नहीं करेंगे. Properties of acids and bases, including their strength, concentration, acidity, basicity, oxyacid, hydroacid, nature and reactions associated with all important topics should be covered because from 20 to 23 examination, preparation and properties of salt are not in syllabus. तो वो वाला टॉपिक तो नहीं है, तो जितना बचा है उस पे पूरा अच्छे से फोकस करना है क्योंकि उसमें से हर टाइप का क्वेश्चन कवर हो सकता है. Students should have a clear concept regarding ions present in acid. Acid में किसका ion present रहेगा? H plus है, hydronium ion है, तो ये acid है. Alkalis and salts like compounds which contain hydrogen atom acid में or atoms when dissolved in water produce hydronium ion as the only positively charged ion. तो उनमें से वो एसिड्स कहलाएंगे जो वाटर में डिसॉल्व होके हाइड्रोनियम आयन बना रहे हैं, वो एसिड्स है. ये तो एसिड की डेफिनेशन ही है. सिमिलरली प्रेजेंस ऑफ अगर मेटेलिक ऑक्साइड वर्ड आता है, हाइड्रोक्साइड वर्ड आता है, तो ये हमारे बेसिस बन गए या अल्कलीज बन गए जो डिसॉल्व हो गए वाटर में. नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस टू बी कवर्ड आर एसिड्स, बेसिस, अल्कलीज, सॉल्ट, एसिड सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, नॉर्मल सॉल्ट along with their examples. क्योंकि इसमें ऑड वन आउट भी पूछ सकता है आपसे या फिर आपको दे देगा कि इनमें से कौन सा एसिडिक सॉल्ट है, तो जिस सॉल्ट के अंदर H रह जाएगा वो एसिड सॉल्ट हो जाएगा. इस तरह से आपने आइडेंटिफाई करना है. दीज कैन बी कवर्ड इन MCQ फॉर्म ऑल्सो. नेक्स्ट इज कंसेप्ट ऑफ इंडिकेटर्स, स्पेशली यूनिवर्सल इंडिकेटर. लिटमस पेपर, लिटमस पेपर को यूज करते टाइम डू नॉट मिस द वर्ड मॉइस्ट. मॉइस्ट लिटमस पेपर ही यूज किया जाता है. pH paper, pH scale along with color change in acids, alkalis using these should be covered properly. तो इस तरह के सारे इंडिकेटर्स आपको अच्छे से पता होने चाहिए कि किस में यूज करेंगे, कौन सा कलर किस में चेंज हो रहा है. Prominent topics of questions related with lab work are addition of dilute acids on salt. क्या फर्क पड़ेगा डाइल्यूट एसिड को डालने से. नेक्स्ट इज डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन कार्बोनेट्स इवॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें भी हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बाई कार्बोनेट होगा या कार्बोनेट्स ही होंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जरूर देगा. इसमें एक्सेप्शन है पोटेशियम कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव होते हैं, तो उनको छोड़ के बाकी किसी भी मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हम बाई कार्बोनेट्स यूज करेंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व करेगा. डिकम्पोजिशन ऑफ सल्फाइड्स या बाईसल्फाइड्स हमेशा सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करेंगे, SO2 प्रोड्यूस करेंगे. डिकम्पोजिशन ऑफ सल्फाइड, पहले तो ये पता लगाओ कि सल्फाइड में और सल्फाइड में फर्क क्या है. सल्फाइड IDE जहां भी आएगा उसमें O नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, तो सल्फाइड इज नॉर्मल S. डिकम्पोजिशन ऑफ सल्फाइड्स विद हाइड्रोजन,
तो हाइड्रोजन और S के ऊपर 2 माइनस, तो H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड। तो हाइड्रोजन सल्फाइड बनेगी जब भी हम सल्फाइड्स की डिकम्पोजिशन करेंगे, जबकि जब हमने सल्फाइड की करी थी, SO3 2 माइनस की करी थी, तो हमारे पास SO2 गैस बनेगी। ये चीजें समझनी बहुत जरूरी है, ये हर चैप्टर में बार बार रिपीट होंगी, खास करके जब आप 4 चैप्टर बीच वाले कंपाउंड्स के पढ़ेंगे तो उसमें ये बार बार यूज होंगी। Next is hydrated salts produce water vapor by appropriate acids with heating। इन सब में जब हमने ऊपर पढ़ी है डिकम्पोजिशन हीटिंग पे ही हो रही है, अगर नेसेसरी है तो हमें हीटिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी। बट याद ये रखना है कि कार्बोनेट है तो कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फाइड है तो सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फाइड है तो H2S है, ये चीजें याद रखनी है। To distinguish between compounds like one acid or one base, you should give a confirmatory test। वहां पर आपने कंफर्मेटरी टेस्ट ही देने हैं ओनली, लाइक यूजिंग एनी रिएजेंट, बट डू नॉट मेंशन ओनली इंडिकेटर्स लाइक मिथाइल ऑरेंज, लिटमस और फिनोल्फथलीन, एज दीज आर फिजिकल टेस्ट। तो आपने फिजिकल टेस्ट नहीं देने हैं, आपने कंफर्मेटरी टेस्ट देने हैं, एंड अगर आपने फिजिकल टेस्ट दिए यू विल नॉट गेट एनी मार्क्स। Chapter number 4 is analytic chemistry. As the name suggests, we will determine the chemical components in a given sample with the help of reagents like sodium hydroxide and ammonium hydroxide. So important type of questions include observation based questions like solubility of precipitate with NaOH and NH4OH, ammonium hydroxide, drop wise and then in excess also. Emphasize on colors of precipitate, किसकी precipitate बनी है, क्या कलर आया है, दोनों के साथ ऑब्जर्व करें, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी। आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैटायन प्रेजेंट, उसमें कौन सा कैटायन है। फॉर एग्जाम्पल पेल ब्लू प्रेसिपिटेट विच इज इनसॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ NaOH इज क्यूप्रिक Cu2+ है, जो पेल ब्लू प्रेसिपिटेट है और जो एक्सेस में भी इनसॉल्युबल ही है। पेल ग्रीन है टर्निंग ब्राउन कलर, तो वो Fe2+ है यानी कि फेरस आयन है। ये सब चीजें हमें अच्छे से समझनी है कलर्स के साथ, किसमें कौन सा कैटायन प्रेजेंट है, कौन सा मेटल, कैटायन मींस पॉजिटिवली चार्ज्ड। नेक्स्ट इज, जब भी आप प्रेसिपिटेट लिखेंगे कलर के बिना नहीं लिखनी है, और प्रेसिपिटेट है ही तभी है जब वो इनसॉल्युबल है, तो जब इनसॉल्युबल है वहां पर वर्ड प्रेसिपिटेट जरूर लिखें, ये कलर की बन रही है PPT प्रेसिपिटेट बन रही है, इतना जरूर लिखें। फ्लेम टेस्ट कलर्स भी हमने इसमें करने हैं, सोडियम के लिए गोल्डन येलो कलर आता है, कैल्शियम के आयन के लिए ब्रिक रेड कलर आएगा, पोटेशियम आयन के लिए लिलैक यानी पर्पल कलर आएगा, और क्यूप्रिक के लिए पीकॉक यानी ब्लूइश ग्रीन कलर आएगा। तो ये सब हमने याद रखने हैं। Another important topic is reaction of ammonium salts with a base to produce ammonia like NH4Cl plus NaOH, ammonium chloride and sodium hydroxide gives NaCl along with water। लेकिन प्रोड्यूस क्या होना है, अमोनिया, क्योंकि हमने अमोनियम का सॉल्ट लिया है और साथ में हमने बेस, सबसे स्ट्रॉन्ग बेस NaOH और KOH, दो ही स्ट्रॉन्ग बेस होती हैं, तो हमने बेस भी स्ट्रॉन्ग लिया है, तो अमोनिया प्रोड्यूस होगा। And similar behavior you will observe if you use the word caustic potash और potassium hydroxide, तो भी तो वही हो जाएंगे KOH, बस उसके लिए caustic potash, potash मतलब potassium, तो KOH हो गया। इंस्टेड ऑफ अगर उसने caustic soda लिखा है, caustic soda कौन हो गया, NaOH हो गया। तो इसको इस नाम से भी हमने याद रखना है कि caustic soda लिखा है तो NaOH है, caustic potash लिखा है तो KOH है, लेकिन रिएक्शन सिमिलर रहेंगी, बस हमने Na को हटा के रिप्लेस करके K लिखना है, पोटेशियम लिखना है। Another easy topic from this chapter is action of concentrated alkalis on amphoteric metals। amphoteric में हमारी बुक में तीन ही मेटल्स के मेन नाम हैं, जिंक है, एल्यूमिनियम है और लेड है। ऐसे तो बेरिलियम भी होता है, बट हमें जिंक, एल्यूमिनियम और लेड करना है, एंड देयर ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स। तो इनको हमें याद करना है किसके साथ क्या रिएक्शन हो रही है। अगर मेटल रिएक्ट करेगा अल्कली के साथ, तो दूसरा जो सॉल्ट बनेगा उसके साथ में अदर देन सॉल्ट H2 सिर्फ हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी, जैसे जिंक प्लस NaOH, तो सोडियम जिंकेट बन रहा है, Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट बन गया, साथ में हाइड्रोजन बन जाएगी। इफ अ मेटल ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड यूज किया हमने, पहले हमने सिर्फ मेटल लिया था तो हाइड्रोजन बनी थी,
अगर मेटल का ऑक्साइड लेंगे तो एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा आ गई हमारे पास, तो ZnO ले लिया NaOH के साथ, तो सोडियम जिंकेट तो बनेगा लेकिन साथ में वाटर बन जाएगा। तो ये गलती जो स्टूडेंट ज्यादातर कर देते हैं कि हाइड्रोजन बनाना है तो वाटर बना देंगे, वाटर बनाना है तो हाइड्रोजन बना देंगे, ये गलती नहीं करनी है। If observations are asked, do not just write the equation. Mainly give the changes like color change, evolution of gas, जो भी है उसका सब कुछ देना है आपने. Do not miss the word solution if the precipitate is soluble in excess. मान लेते हैं पहले ये डिसॉल्व नहीं हुआ था लेकिन जब हमने एक्सेस में डाला तो ये प्रेसिपिटेट भूल गई, तो अब ये प्रेसिपिटेट नहीं रही, इट इज नो लॉन्गर प्रेसिपिटेट, नाउ इट हैज बिकम अ सॉल्यूशन। तो आपको आंसर में सॉल्यूशन वर्ड यूज करना है। राइट द वर्ड आयन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए केटायन। जैसे हमने क्यूप्रिक देख लिया, Cu2+ बन रहा है, बट क्यूप्रिक लिख के छोड़ना नहीं है, उसके आगे आयन वर्ड भी मेंशन करना है। आयन प्रेजेंट इन दिस रिएक्शन इज क्यूप्रिक या सोडियम या पोटेशियम, जो भी है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट चैप्टर विच इज मोल कॉन्सेप्ट। Gay-Lussac's law of combining volume related numericals are very important along with the correct statement of the law. हमें लॉ की डेफिनेशन भी याद करनी है क्योंकि इस चैप्टर का बहुत सारा टॉपिक तो कटा हुआ है, जितना है उस पर अच्छा फोकस रहना चाहिए और न्यूमेरिकल्स को हर तरह से प्रैक्टिस करना है। While solving numericals, remember to solve it after balancing the chemical equation. मान लेते हैं C2H2 मुझे इथाइलिन दिया है प्लस ऑक्सीजन दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहा है, लेकिन मैं इस रिएक्शन को अगर ऐसे ही लॉ लगा दूंगी तो ये गलत हो जाएगा। मुझे पहले इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। आपको पता है ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस कर रहा है, तो बैलेंसिंग के लिए हम 2 लगाएंगे आगे, ऑक्सीजन के 5 मॉलिक्यूल्स लेंगे, 4 कार्बन डाइऑक्साइड के, वाटर के चाहे हमने नील लेना है, गैस के लिए हमने लिक्विड को लेना ही नहीं है इस लॉ के लिए, लेकिन फिर भी हम बैलेंस जरूर करेंगे। I have solved these numericals in my video on MCQ, in which I have covered these previous 3 chapters in one video and I have solved these type of numericals in a very simple way there. Next is concept of vapor density and its relation with relative molecular mass should be clear. That is, molecular mass is equal to 2 into vapor density. ये बहुत बार न्यूमेरिकल्स में यूज होगा, आपको दिया जाएगा कि वेपर डेंसिटी इतनी है तो मॉलिक्यूलर मास कितना है, तो जस्ट उसको हाफ कर देना है या वाइस वर्सा। डेफिनेशन एंड सिंपल न्यूमेरिकल्स ऑन एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज द अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर, बट रिमेंबर पहले आप वेपर डेंसिटी को मॉलिक्यूलर मास में कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट इज व्हाइल मेकिंग द टेबल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला रिमेंबर टू मेक करेक्ट कॉलम्स। कॉलम की सीक्वेंस याद रखनी है। फर्स्ट कॉलम में हमारे पास एलिमेंट का नाम है, जो जो एलिमेंट यूज हो रहे हैं। अब इसमें एक चीज और बताना चाहूंगी, यहाँ पे एलिमेंट में अगर बुक में या किसी क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें हाइड्रोजन इतनी है और ऑक्सीजन इतनी है, कार्बन तो मिसिंग है, उसने तो परसेंटेज हमें 2 की दी, आप उनको कैलकुलेट करो, उन 2 की कैलकुलेट का परसेंटेज जो टोटल आएगा वो 100 ही नहीं बनेगा, तो आपने उन दोनों को प्लस करके 100 में से माइनस करना है, तब जाके कार्बन की परसेंटेज निकलेगी। तो सॉल्व करने से पहले चेक कर लेना है कि जितने भी हमारे को उसके अंदर एलिमेंट्स दिए हुए हैं, परसेंटेजेस दी हुई हैं, उन सबका प्लस क्या 100% आ भी रहा है। अगर नहीं आ रहा इट मीन्स वहां कुछ मिसिंग है, उसको चेक करिए। तो फर्स्ट कॉलम में हमने एलिमेंट रखना है, सेकंड में परसेंटेज कॉम्पोजिशन रखनी है, थर्ड में एटॉमिक मास रखना है, फोर्थ में एटॉमिक रेशियो रखना है। अब यहाँ सबसे मेजर गलती आ रही है जो बहुत बार स्टूडेंट्स करते हैं, जहां एटॉमिक रेशियो निकालना है। एटॉमिक रेशियो निकालने के लिए जो परसेंटेज कॉम्पोजिशन उन्होंने क्वेश्चन में हमें दी है वो हमें ऊपर रखनी है न्यूमरेटर में, और नीचे उसको एटॉमिक मास से डिवाइड करना है, और एटॉमिक मास तो ज्यादातर हमें याद ही होते हैं, तो नीचे उसके साथ डिवाइड करना है। हम उल्टा कर देंगे तो एटॉमिक रेशियो गलत है, तो सिंपलेस्ट रेशियो कभी भी ठीक आएगा ही नहीं, आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला रॉन्ग हो जाएगा। प्लीज इस स्टेप पे जरूर फोकस करें, हाथ से प्रैक्टिस करें न्यूमेरिकल्स करने की, स्पेशली इस तरह के। लास्ट कॉलम इज सिंपलेस्ट रेशियो, जहां पर हम फिर देख लेंगे कि C2H2 इतना आ रहा है, तो फिर हमारे पास उसका हमने कैलकुलेट कर देना है। इफ इट हैज बीन आस्क्ड इन द क्वेश्चन पेपर टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अभी तो हमने एम्पेरिकल निकाला, C2H2 नहीं आएगा, CH ही आएगा क्योंकि कॉमन रेशियो उसका नहीं होगा। Calculate the molecular formula. Do not forget to use the formula. Molecular formula is equal to N into empirical formula.
आपने जो अभी निकाला वो एम्पेरिकल फॉर्मूला है, उसको n से मल्टीप्लाई करेंगे तब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा, या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मास भी दिया होगा तो मास भी इसी तरह से निकालना है। According to reduced syllabus for the academic year 2022-23, only these topics are included, but it still carries approximately 10 marks. So numericals need a lot of practice, and remember, practice make our concept strong. तो आप प्रैक्टिस से मत बचें, हमेशा प्रैक्टिस करें ताकि वहां पर आपकी गलती ना हो। Chapter 6 is electrolysis. This chapter carries approximately 10 marks and has a variety of probable questions ranging from definitions, differences, electrode reaction, diagram-based questions, and also reasoning type questions. The important definitions which can be asked in the question paper are electrolysis, electrodes, anode and cathode, cation and anion, oxidizing electrode, reducing electrode, electrolyte, non-electrolyte, strong and weak electrolyte, active and inert electrode, electroplating, electrorefining, electrometallurgy and spectator ions, etc. प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन, कौन कौन से पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं इन स्ट्रॉन्ग, वीक एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। जैसे ये एग्जांपल्स अभी हमने स्पेशल पेपर में भी ऐसा सिमिलर क्वेश्चन देखा था, ओनली फ्री मोबाइल आयॉन्स इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, जो भी स्ट्रॉन्ग होंगे उनके पास फ्री आयॉन्स होंगे ताकि वो जल्दी से मोबाइल रहेंगे, मूव करेंगे। सेकेंड, आयॉन्स एज वेल एज मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट किनमें, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर। और थर्ड है ओनली मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट, वो किसमें है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। तो ये हमने याद रखना है, अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो उसके पास आयॉन्स एज वेल एज मॉलिक्यूल्स हैं, अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो उसके पास सिर्फ मॉलिक्यूल्स हैं, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो उसके पास भागने वाले आयॉन्स हैं, इसीलिए वो स्ट्रॉन्ग है। Differences between electrolytic dissociation like ions are already present in the ionic compound. अगर हम इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर वो आयॉन्स डिसोसिएट हुए हैं जो आयोनिक कंपाउंड, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड में पहले से ही प्रेजेंट थे। और दूसरा, अगर हम आयोनाइजेशन की बात करेंगे, लाइक फॉर्मेशन ऑफ आयन फ्रॉम मॉलिक्यूल्स विच आर नॉट इनिशियली इन द आयोनिक स्टेट, स्पेशली इन द पोलर कोवेलेंट कंपाउंड में पहले तो वो मॉलिक्यूल था, बाद में आयंस में हुआ, तब हम आयोनाइजेशन वर्ड यूज करेंगे। तो ये डिफरेंस इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन में शुड बी वेरी क्लियर टू यू। वैसे भी डेफिनेशंस में कोई भी कीवर्ड मिस करना आपकी डेफिनेशन को कोई मार्क नहीं दिलवा पाएगा। नेक्स्ट इज ऑल द थ्री फैक्टर्स अफेक्टिंग selective discharge of ions at electrodes with examples should also be understood properly. जैसे पहला आ गया रिलेटिव पोजीशन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वो एलिमेंट ईसी सीरीज में कहाँ है। इट मींस रेस तो सब में लगेगी और इस रेस में जो सबसे नीचे होगा वो पहले पहुंच जाएगा और बाकी सब स्पेक्टेटर आयंस बनके, दर्शक बनके देखते रहेंगे। पहुंचेगा कौन, जो ईसी सीरीज में सबसे नीचे होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो उनकी रिलेटिव पोजीशन हमें देखनी ही पड़ेगी। रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ आयन, ये हमारा सेकंड आ जाएगा। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ कंसंट्रेटेड NaCl अगर हमने लिया, देन क्लोरीन विल बी डिस्चार्ज डिस्पाइट इट पोजीशन इज नॉट लोअर इन द EC सीरीज। अब आप कहोगे कि क्लोरीन भी भागा था, क्लोराइड आयन भी भागा था और OH माइनस भी भागा था, तो फिर क्लोरीन कैसे पहुंच गया। अब क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन यहाँ पर ज्यादा है, तो सेकंड फैक्टर क्या है, रिलेटिव कंसंट्रेशन जिसकी ज्यादा होगी वो डिस्चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पर NaCl में कंसंट्रेटेड NaCl है, इसीलिए क्लोरीन डिस्चार्ज हो रहा है जबकि उसकी पोजीशन नीचे नहीं है। बट इन केस ऑफ अगर हम डाइल्यूट NaCl ही लेंगे तो फिर हाइड्रोक्साइड आयंस ही जाएंगे, डिस्चार्ज होंगे एनोड पे, और ज्यादा डिफरेंस एनोड पे ही आता है। कैथोड पे तो दोनों केसेस में हाइड्रोजन ही इवॉल्व होनी है। थर्ड फैक्टर इज नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड विद इनर्ट इलेक्ट्रोड। अब इनर्ट इलेक्ट्रोड कौन सी होती हैं, ग्रेफाइट की होती है और प्लेटिनम की होती हैं, जो खुद पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। वो एनोड पर अगर हमने इनर्ट इलेक्ट्रोड लगाई है देन द प्रोडक्ट इज ऑक्सीजन। और अगर हमने एक्टिव इलेक्ट्रोड ली है, कौन सी होती है एक्टिव इलेक्ट्रोड, जो मेटल की होती हैं, कॉपर की हो गई, सिल्वर की हो गई, निकल की हो गई। इस केस में मान लेते हैं हमने कॉपर आयन लिया है, तो क्या होगा, कॉपर आयन ही फॉर्म होंगे
और प्रोडक्ट जो बनेगा वो एनोड पे निल रहेगा, कुछ नहीं बनेगा, और कैथोड की रिएक्शन जो होंगी वो सेम रहेंगी। तो जब हमने इनर्ट इलेक्ट्रोड ली थी तो जो चेंज आया प्रोडक्ट का वो एनोड पे आया, कैथोड पे तो सेम प्रोडक्ट रहा। जब इनर्ट इलेक्ट्रोड थी तो एनोड पे ऑक्सीजन बनी थी, और जब हमने एक्टिव इलेक्ट्रोड ली है तो क्यूप्रिक आयंस बनेंगे और प्रोडक्ट हमारे लिए निल हो जाएगा वहां पे, और कैथोड रिएक्शन सेम रहेगी। कंडीशंस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग शुड बी लर्नड वेल अलोंग विद देयर रीजन। अगर हम लो करंट देंगे, यूनिफॉर्म डिपोजिशन आएगी, उसके ऊपर एक यूनिफॉर्म लेयर आएगी, लॉन्ग लास्टिंग लेयर आएगी, शाइनिंग रहेगी, हमें डीसी करंट क्यों यूज करना चाहिए, कम वैल्यू का क्यों यूज करना चाहिए, जितनी भी कंडीशंस इलेक्ट्रोप्लेटिंग की हैं सब लर्न करनी है, उनके रीजन भी करने हैं। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन लेड ब्रोमाइड PbBr2 एंड एसिडिफाइड वाटर along with क्या क्या याद करना है, कैथोड पे रिएक्शन, एनोड पे रिएक्शन, observations, ions discharge and other probable questions from the point of board examination, ये सब हमें याद करने हैं। 4 इंपॉर्टेंट केसेस हैं, उनमें से 2 ये हैं, और बाकी में जब हम उनके अंदर इनर्ट इलेक्ट्रोड और दूसरी इलेक्ट्रोड ले लेंगे। Next is application of electrolysis like electroplating with nickel and silver. Choice of electrolyte हमने कौन सा चूज किया, रीजन फॉर द चॉइस along with हमने कौन सा क्या रीजन था जो हमने यहाँ पर सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड ही यूज किया, तो इसका रीजन देना है। along with इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, ये भी हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिफाइनिंग करके दिखाना। तो योर मेन फोकस शुड बी ऑन द इक्वेशंस बनानी है, रीजंस याद करने हैं, इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज किया है और क्यों यूज किया है और क्या कंडीशंस थी इस इक्वेशन के पीछे, तो ये सब चीजें हमने इस तरह के क्वेश्चंस लर्न करने हैं। नाउ रिमेंबर, व्हाइल इलेक्ट्रो रिफाइनिंग एनी मेटल, किसी भी मेटल की रिफाइनिंग करेंगे, द कैथोड शुड ऑलवेज बी द प्योर मेटल, तो कैथोड पे हमने उस प्योर मेटल को लगाना है जिसकी रिफाइनिंग हो रही है। और फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग एनोड शुड बी द प्योर मेटल, अगर हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रहे हैं तो हमारी एनोड प्योर मेटल बनेगी एंड आर्टिकल टू बी प्लेटेड इज केप्ट एट द कैथोड, जिस पे हमने स्पून पे या किसी भी ऑब्जेक्ट पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है उसको हम कैथोड बनाएंगे, एनोड को प्योर मेटल बनाएंगे, सिल्वर का बनाएंगे, तो सिल्वर की प्लेटिंग स्पून पे हो जाएगी। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में एनोड प्योर मेटल की है और इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में कैथोड पे प्योर मेटल रखना है। ये दोनों गलतियां स्टूडेंट्स अक्सर करते हैं, आप इसको रिपीट नहीं करेंगे। नाउ एडिशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि रिडक्शन हो रही है, जब भी एडिशन हो रही है इलेक्ट्रॉन की यानी कि रिडक्शन हो रही है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, रिडक्शन हो रहा है, इट मींस जनरली वहां पर मेटल जो है वो कैथोड पे है, और अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रही है, तो वो एनोड पे हो रही है। तो इस चैप्टर में मेन फोकस आपका सारी रिएक्शंस पे रहेगा, स्पेशली कैथोड पे, एनोड पे कौन सी रिएक्शन बन रही है, कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, ऑब्जर्वेशन में उसका कलर सिल्वर ग्रे है, क्या प्रिकॉशंस लेनी है हमने रिएक्शन परफॉर्म करते टाइम, सेटअप कैसा होगा, इन सब क्वेश्चंस पे हमारा मेन फोकस रहना चाहिए, क्योंकि डायग्राम भी आ सकते हैं इसमें से, तो डायग्राम पे भी अच्छे से फोकस रखना है। With this, I conclude my today's video. I will cover other chapters in my next video. If you have any doubt, you can tell me in the comment section. Till then, thank you for watching till the end. Keep watching, sharing and subscribe to my channel. Thank you.